Hi and a very welcome back to all students. So today we are going to understand the topic of phyllotaxy of leaves, right? In this topic mainly you will understand that how leaves are arranged on stem, right? And there are various patterns in which leaves are arranged that we are going to understand, right? So let us start with the understanding of the topic, right? So phyllotaxy is the arrangement of leaves around the stem. So how around the stem leaves are arranged, that is called phyllotaxy. स्टेम के आसपास लीव्स कैसे अरेंज्ड होते हैं उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, राइट? द अरेंजमेंट इज मैथमेटिकल विच इज़ सरप्राइजिंग, राइट? सो हम अक्सर सोचते हैं कि प्लांट्स है तो देर इज़ नथिंग रिलेटेड टू मैथ्स और देर इज़ नथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशंस, राइट? बट you will understand that this arrangement of leaves is very much mathematical, which is a very surprising fact, right? Then it follows definite law. The phyllotaxy of leaves follows definite laws. कुछ लॉ को फॉलो करता है जिसके बेसिस पे लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम पे होता है. सो there is a definite law based on which leaves are arranged on the stem of a plant. So उस लॉ को फॉलो करके लीव्स जो है वो स्टेम के ऊपर अरेंज्ड होते हैं. The arrangement is usually regular and never placed randomly. So हम जब प्लांट को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो लीव्स है वो किसी भी तरह से रैंडमली रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है. यूजुअली जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है, एक प्रॉपर पैटर्न में होता है, राइट? सो दिस इज़ अ प्रॉपर मैथमेटिकल पैटर्न विच इज़ फॉलोड इन द लीफ अरेंजमेंट. Rather it is not a random arrangement, though it may seem like it is random, it is not a random arrangement. So mainly there are two types of arrangement of leaves. This is called as colline and radical. So what is colline? Colline is when the foliage leaves spread around the stem with long or short internodes. तो कोलाइन अरेंजमेंट कब बोलते हैं? जब जो लीव्स होते हैं वो स्टेम के ऊपर जो नोड्स और इंटरनोड्स है उस पे अरेंज्ड होते हैं, तो उसको कोलाइन बोलते हैं. वेरेज रेडिकल जो है तो उसमें क्या होता है कि लीव्स अराइज ऑन अ क्लस्टर एज अ रॉसेट फ्रॉम अ शॉर्ट स्टेम. मतलब एक छोटा सा स्टेम होता है, उसके ऊपर क्लस्टर में लीव्स निकलते हैं, तो उसको रेडिकल बोलते हैं. Okay, let me just make you understand this with the help of a pen. So when I say colline, I mean that, for example, this is a stem, right? And we know that what are nodes and internodes, right? So this is one node, this is second node, likewise this is internode. So this is your node, right? This is also node and this is your internode, right? So when the leaves are arranged in the nodes and internodes, for example like this, right? So this is called colline phyllotaxy or colline arrangement of leaves, not phyllotaxy but colline arrangement of leaves. So but then what is radical? Radical is when leaves are present in cluster. For example, this is a short stem and leaves are like present in cluster all together, right? So this is called radical. Yeah, so these are the two types of leaf arrangement that is present on the stem. Now let us first of all understand cyclic phyllotaxy, right? So as the name suggests, in this type of phyllotaxy, leaves at each node form a whorl. Now we know what is a whorl. Whorl is when there is circular arrangement. जब एक circular arrangement होता है तो उसको हम whorl बोलते हैं. मतलब जब leaves circle में arranged है तो we call it as a whorl. So anything could be arranged in a circle. It could be a flower or it could be a leaf, right? So in this case, in our case, since we are learning phyllotaxy,
for us the thing that is arranged in whorl are leaves, right? So leaves at each node form a whorl, that is they form a circular pattern, they are arranged on a circular pattern and therefore this is called as cyclic phyllotaxy। और इसलिए इसको cyclic phyllotaxy बोलते हैं क्योंकि स्टेम के ऊपर सर्कुलर पैटर्न में लीव्स प्रेजेंट होता है तो उसको साइक्लिक फाइलोटैक्सी बोलते हैं। Leaves placed on a circle in which the angles between adjacent leaves are the same. So what happens in cyclic phyllotaxy, that leaves जो है वो circular pattern में present है, right? And leaves जो है वो adjacent leaves जो है वो same angle बनाते हैं। For example, make you understand. For example, this is the stem, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर, यानी कि अगर दो लीफ प्रेजेंट है तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। सो एक प्रॉपर एक सेम एंगल बनता है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फाइलोटैक्सी। अगर तीन लीव्स भी होंगे तो भी एक कुछ प्रॉपर एंगल बनेगा, तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा, राइट। सो दैट वुड बी साइक्लिक फाइलोटैक्सी। So for example, if there are two leaves, right? So what will happen, will be placed opposite to each other। तो अगर circular pattern में सिर्फ दो leaves present है तो वो दोनों opposite present होंगे। अगर 3 leaves present है सर्कुलर पैटर्न में तो वो एंगल बनाएगा 120 का, तो दो लीव्स के बीच में जो एंगल होगा वो 120 होगा। सिमिलरली ये दो लीव्स के बीच में जो एंगल होगा वो 120 का होगा एंड लाइकवाइज द एंगल बिटवीन द नेक्स्ट 2 लीव्स विल बी 120। सो जो भी एंगल बनेगा लीव्स के बीच में एक वॉल में वो एंगल हमेशा सेम होगा, राइट। तो अगर दो लीव्स है तो ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे, एंगल जो होगा वो 180 होगा। 3 लीव्स है और ऐसे पैटर्न में प्रेजेंट होंगे कि तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो तो वो एंगल 120 डिग्री होगा। और अगर इफ़ देर आर मोर देन 2 लीव्स द फाइलोटैक्सी इज़ कॉल्ड अ वर्टिसिलेट फाइलोटैक्सी। अगर 2 से ज़्यादा लीव्स है तो उस फाइलोटैक्सी को वर्टिसिलेट या तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट साइक्लिक फाइलोटैक्सी। अब साइक्लिक फाइलोटैक्सी में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी आता है और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, इस तरीके से 2 फाइलोटैक्सीज आते हैं तो वो हम देख लेते हैं पहले। So opposite phyllotaxy is a type of cyclic phyllotaxy. So as discussed before, 2 leaves at each node is always opposite one another. तो 2 leaves present होंगे node पे और दोनों एक दूसरे के opposite होंगे। अब opposite phyllotaxy भी 2 टाइप की है। There are 2 types of opposite phyllotaxy, opposite decussate and opposite superposed, right? So let us first of all understand that what is opposite decussate. So if the successive pair of leaves are placed in right angles, so जब जो leaves है we already know कि जो leaf है वो opposite होंगे एक दूसरे के, तो ऐसे एक पैर होगा। अब जैसे ऐसे ही हर एक पैर जो है वो एक दूसरे के right angles में होगा तो उसे opposite decussate बोलेंगे। और जब हम उस अरेंजमेंट को ऊपर से देखेंगे from the top, तो all leaves would be found to be arranged in 4 vertical rows. So you will see that हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि चारों लीव्स जो है वो 4 वर्टिकल रोज में प्रेजेंट है। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं कैलोट्रोपिस, गार्डिनिया, आइक्सोरा। सो कैलोट्रोपिस गुजराती में इसको आंकड़ो बोलते हैं, राइट, जो हनुमान मंदिर में उसका फूल का हार बनाया जाता है, राइट। देन गार्डिनिया इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, राइट, वाइट फ्लावर्स आते हैं बड़े बड़े। देन आइक्सोरा इज़ the red small flowers that you know that come in bunches, that is Ixora, right? So all of these have opposite decussate leaves. So let us understand this with the help of this diagram. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि 2 लीव्स प्रेजेंट है ऑपोजिट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से ऑपोजिट लीव्स है, राइट। अभी ये जिस तरीके से प्रेजेंट है सेम उस पैटर्न में ये नहीं प्रेजेंट है, ऊपर वाले जो लीव्स है वो राइट एंगल में है। तो आप
you can see that this forms a right angle with the pair of leaves which is present below it. So this is right angle, right? ये राइट एंगल बनता है. अभी ये लीफ जैसे प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन में ये नहीं प्रेजेंट होगा, पर ऊपर वाले जो पैर है वो राइट एंगल में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, एक पैर ऐसे गया, अब दूसरा पैर एग्जैक्टली ऑपोजिट, और अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये बनेगा राइट एंगल. राइट. सो दिस इज राइट एंगल. सिमिलरली अभी ये ऊपर वाला, नीचे वाला जो पैर है वो ऐसे है, तो अभी इसको हम देखेंगे तो ये जो है ये ऐसे अरेंज्ड है. राइट. सो दिस विल फॉर्म राइट एंगल. सो इस तरीके से हर एक पैर जो है वो राइट एंगल में प्रेजेंट है, तो इसको ऑपोजिट डायकोसेट बोलते हैं. राइट. अगर मोस्टली आइक्सोरा प्लांट जो है आजकल तो काफ़ी सारे गार्डन्स में भी होता है, तो आइक्सोरा प्लांट जो है उसका भी इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. अगर कभी आप गार्डन में जाओ और आइक्सोरा प्लांट आपको दिखे तो उसकी फाइलोटैक्सी देखना, you will see that this is opposite dacosate, right? Then this is the plant which is called Calotropis. आंकड़ो भी बोलते हैं इसको, right? So if you see okay, let me just zoom it. अगर इसको ध्यान से देखो तो देखो नीचे के लीव्स जो है वो ये रहे पैर में. अभी दूसरा जो पैर है वो राइट एंगल में जा रहा है, एक इस तरफ और एक उस तरफ. राइट. सिमिलरली अब ऊपर वाला इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है. सो ये राइट एंगल बनाता है. तो हर एक पैर जो है वो राइट एंगल में प्रेजेंट है. राइट. देन सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज गार्डिनिया. गार्डिनिया फ्लावर्स जो है वो भी ऐसे ही होते हैं. राइट. देन लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑपोजिट सुपरपोज्ड. सो ऑपोजिट सुपरपोज जो है वो हम देख सकते हैं ग्वावा, क्विस्क्वालिस. Okay, guava is your जामफल, right? And quisqualis जो है वो मधुमालती बोलते हैं जिसको, जिसमें पिंक कलर के बंच में फ्लावर्स आते हैं. इट्स अ क्लाइंबर, राइट? सो these have opposite superposed leaves, right? So now what is opposite superposed? If the successive pairs are placed exactly on top of one another. तो जैसे यहाँ पे हमने पैर्स देखे कि राइट एंगल्स में प्रेजेंट है, पर यहाँ पे क्या होगा, इन ऑपोजिट सुपरपोज द सक्सेसिव पेयर्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ वन अनदर. तो जो पैर है वो एक दूसरे के ऊपर होगा, एक के ऊपर एक. राइट. नॉट इन राइट एंगल्स. सो ऑल द लीव्स यू विल सी आर प्रेजेंट इन वन प्लेन. तो जो भी लीव्स देखोगे वो ऐसा लगेगा कि एक ही प्लेन में है. एंड व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप 2 वर्टिकल रोज विल बी विजिबल. 2 वर्टिकल रोज दिखेंगे. सो एक वर्टिकल रो ये रहा, एक वर्टिकल रो ये रहा, और देखो सुपरपोज्ड है, मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे के. एंड एग्जैक्टली जहाँ पे ये वाला पैर प्रेजेंट है उसके एग्जैक्टली नीचे सेकेंड पैर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली नीचे थर्ड पैर प्रेजेंट है. सो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट सुपरपोज्ड. राइट. तो इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ 2 वर्टिकल रोज दिखेंगे. राइट. जबकि ऑपोजिट डायकोसेट में हम ऊपर से देखते तो हमें 4 वर्टिकल रोज दिखते. यहाँ पे 2 दिख रहे रोज, उसी तरह यहाँ पे हमें 4 दिखते. तो हियर इन दिस ऑपोजिट डायकोसेट देयर वुड बी 4 वर्टिकल रोज सीन फ्रॉम द टॉप, whereas in opposite superposed there would be 2 vertical rows seen from the top. So I hope that opposite phyllotaxy is clear with you. This plant that you are seeing is Quisqualis, the Madhumalati plant, right? So now let us move towards understanding of another type of cyclic phyllotaxy, which is verticillate or whorled phyllotaxy, right? So verticillate or whorled phyllotaxy is when more than 2 leaves are present at node. तो जब नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको वर्टिसिलेट या वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल नेरियम ओडोरम जो प्लांट है या फिर नेरियम जो प्लांट है, राइट, उसको कनेर भी बोलते हैं, राइट. सो दीज हैव 3 लीव्स एट ईच नोड. तो हर एक नोड पे 3 लीफ प्रेजेंट है पर वर्ल्ड अरेंजमेंट है.
वैसे ही एल्स्टोनिया स्कोलारिस जो प्लांट है, जिसको सप्तपर्णी बोलते हैं क्योंकि उसमें 7 लीव्स होते हैं, तो उसमें देर आर मोर देन 5 लीव्स एट ईच नोड. सो let us understand with this example. This is actually a diagram for Nerium odorum or Nerium plant. So in Nerium, what is happening? There are 3 leaves at each node. See, this is one node, so 1 leaf, 2 leaf, 3 leaf. This is second node, 1 leaf, 2 leaf and 3 leaf. So like this, at every node there are 3 leaves present in a wall, right? सो दिस इज़ नेरियम. ये प्लांट आपने ऑलमोस्ट बहुत जगह देखा होगा, बहुत लोगों के घर भी होगा, राइट. इवन रोड साइड्स में भी ये प्लांट होते हैं क्योंकि मोस्टली ये प्लांट जो होते हैं ज़ेरोफाइटिक होते हैं, सो इनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, राइट. सो ये जो प्लांट है ये नेरियम है, और इसमें अगर आप ध्यान से फाइलोटैक्सी देखोगे, ट्राई करते हैं अगर दिखता है तो, आप देख सकोगे कि ये नोड है, यहाँ पे 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ. अभी ऊपर एक और नोड है, 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ. सो लाइक दिस देर आर 3 लीव्स एट ईच नोड. सो दिस इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी और वर्टिसिलेट फाइलोटैक्सी इन नेरियम. देन दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. ऐसा हम सप्तपर्णी यानी कि एल्स्टोनिया स्कोलारिस में देख सकते हैं. ये जो है एल्स्टोनिया स्कोलारिस का ट्री है, राइट. सो देर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लीव्स इन अ वॉल, इसलिए इसको सप्तपर्णी बोलते हैं. अब एग्जैक्टली इंटर नोड के बाद नीचे एक दूसरा नोड है और उसमें भी 7 लीव्स हैं. देर आर 7 लीव्स. सो एट एवरी नोड देर आर लीव्स अरेंज्ड in Alstonia scolaris, which are 7. So at every node 7 leaves are present, so this is called world phyllotaxy or verticillate phyllotaxy, right. So these are the two examples. Even this Alstonia scolaris is a very common tree now in Ahmedabad also. So अहमदाबाद में भी आप इस ट्री को देख सकते हो, राइट. काफ़ी सारी जगह रोड साइड्स में जहाँ पे ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे एल्स्टोनिया स्कोलारिस देखा जाता है, राइट. जहाँ पे 7 लीव्स प्रेजेंट हो तो यू नीड टू नो दैट दिस इज एल्स्टोनिया स्कोलारिस, राइट. सो दिस इज अबाउट cyclic phyllotaxy which has opposite phyllotaxy and world phyllotaxy, right. So now we move towards the understanding of another type of phyllotaxy which is spiral, alternate और acyclic phyllotaxy. तो पहला जो हमने देखा था that was cyclic phyllotaxy, राइट, जिसमें 2 टाइप्स हमने देखे, ऑपोजिट और वर्ल्ड. अब जो हम पढ़ेंगे वो है स्पाइरल फाइलोटैक्सी, या तो एसाइक्लिक फाइलोटैक्सी, या तो इसको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी. तो ये सबसे कॉमनेस्ट फाइलोटैक्सी होता है, एंड इसमें जो अरेंजमेंट है वो स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल अरेंजमेंट होता है लीव्स का. सो देर आर सम पॉइंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एसाइक्लिक फाइलोटैक्सी. तो हमें कौन सी बात ध्यान मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव लीव्स इज कांस्टेंट. तो एसाइक्लिक फाइलोटैक्सी में क्या होगा कि एंगुलर डिस्टेंस जो है 2 लीफ के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमेशा सेम रहेगा. एंगुलर डिस्टेंस को एंगुलर डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, राइट. सो द एंगुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, कांस्टेंट बिटवीन 2 लीव्स, राइट. देन another point is, so when looked from the top, all the leaves are seen in fixed number of vertical rows or orthostickies. तो जब हम ऊपर से देखते हैं प्लांट को तो हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे एक फिक्स नंबर ऑफ वर्टिकल रोज है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि वर्टिकल रोज दिखते हैं ऊपर से, राइट. तो वैसे ही स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ वर्टिकल रोज होंगे जिसमें लीव्स अरेंज्ड होते हैं. उसको ऑर्थोस्टिकीज भी बोलते हैं. ऑर्थोस्टिकीज क्या होता है कि एक लीफ के नीचे दूसरा लीफ प्रेजेंट है, दूसरे लीफ के नीचे तीसरा लीफ प्रेजेंट है, एक रो बन जाता है, तो उसको हम ऑर्थोस्टिकीज बोलते हैं, राइट.
तो वो जो ऑर्थोस्टिकीज है वो हमें फिक्स्ड नंबर में दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे तो। देन द ऑर्थोस्टिकीज आर इवनली डिस्पर्स्ड ऑन अ सर्कल। ऑर्थोस्टिकीज जो है वो सर्कल में इवनली डिस्पर्स्ड होता है, मतलब कि जो ओके एक डायग्राम के साथ देखते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेम है, ठीक है, और या एंड ऑर्थोस्टिकीज आर इवनली डिस्पर्स्ड ऑन अ सर्कल। अब ऑर्थोस्टिकीज मैंने क्या कहा कि ये एक लीफ है तो ये दूसरा लीफ, ठीक है, ये इंटरनोड्स ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक लीफ यहाँ पे है, हो सकता है एक लीफ यहाँ पे भी हो, तो एक लीफ यहाँ पे होगा, ठीक है, वैसे ही एक लीफ यहाँ पे होगा। अभी एक यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल एक लीफ यहाँ पे है तो एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इधर एक लीफ है तो एक लीफ यहाँ प्रेजेंट है। सो ऑर्थोस्टिकीज क्या है, ये एक वर्टिकल रो बना, इसको ऑर्थोस्टिकीज बोलते हैं। ये एक वर्टिकल रो बना एंड ये एक वर्टिकल रो बना, मतलब एक के नीचे एक लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टिकीज, राइट। सो दिस ऑर्थोस्टिकीज इन एसाइक्लिक फाइलोटैक्सी इज इवनली डिस्पर्स, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में ऑर्थोस्टिकीज डिस्पर्स्ड होते हैं एसाइक्लिक फाइलोटैक्सी में। The angle between the orthostickies being constant, so orthostickies मतलब कि leaves के बीच में जो angle होगा वो constant होगा and leaves look scattered but are arranged properly। तो पर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि leaves जो है वो scattered है but वो properly arranged है, right। so इसको हम acyclic phyllotaxy क्यों बोलते हैं, क्योंकि these are not present in whorls, whorls में present नहीं है, साइक्लिक अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो ऑल्टरनेट है और स्पाइरल में है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि हम क्यों इसको स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, राइट। एंड और क्यों इसको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, राइट। सो लेट अस मूव towards understanding of why is it called a spiral phyllotaxy. So to understand the spiral phyllotaxy we need to imagine a line touching the base of successive leaves and that line is a spiral. तो for example सबसे पहले हमको एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सो ये स्टेम है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द वेरी बैड डायग्राम बट दिस इज़ हाउ ओनली आई कैन ड्रॉ फॉर नाउ विद दिस पेन, राइट। सो या सो इमेजिन कि ये आपका स्टेम है, राइट, किसी प्लांट का स्टेम है, ठीक है, एंड दिस आर द इंटरनोड्स, this is the node and this is the internode, right। so you have to imagine a line touching the base of successive leaves। so for example एक लीफ जैसे for example यहाँ पे प्रेजेंट है तो मुझे एक लाइन इमेजिन करनी है जो इसके बेस को टच करे। तो एक तो ये रहा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लीफ यहाँ पे है तो क्या होगा, आई मेक अ स्पाइरल and this touches the leaf। अभी फॉर एग्जाम्पल एक लीफ यहाँ पे है, राइट, तो ये मैंने स्पाइरल घुमाया, राइट। सो लाइक दिस एक पूरा स्पाइरल अरेंजमेंट बन जाता है अगर मैं लीफ के अरेंजमेंट को देखूँ तो। सो इन दिस वे स्पाइरल अरेंजमेंट बनता है, एक लीफ यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम एक लीफ यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है एंड एक ही इधर है। सो ये स्पाइरल लाइन है नहीं प्लांट पे, बट दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच यू हैव टू इमेजिन व्हेन यू सी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो जब अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखते हैं तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है जब लीफ का अरेंजमेंट हम स्पाइरल फाइलोटैक्सी में देखने जाते हैं। तो इसमें यूजुअली अरेंजमेंट जो लीफ का होता है वो स्पाइरल इमेजिनरी लाइन पे होता है
तो इसलिए इसको स्पाइरल फाइलोटैक्सी बोलते हैं। इसको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फाइलोटैक्सी है वो ऐसे ही स्टेम्स में, ऐसे ही प्लांट में देखी जाती है जहाँ पे लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट होते हैं, ऑपोजिट नहीं, राइट। एंड इसको ए साइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक वर्ल में वी आर नॉट टेकिंग अरेंजमेंट एज अ साइक्लिक पैटर्न बट एज अ स्पाइरल पैटर्न, ठीक है। इसमें स्पाइरल पैटर्न देखते हैं ना कि साइक्लिक पैटर्न, और इसलिए इसको ए साइक्लिक फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। So imagine a spiral, that is what I was telling. So imagine a spiral over the stem. Now one word that you need to understand is angular divergence. So what is angular divergence? Angle subtended at the center by two consecutive leaves. दो लीव्स यानी कि ये लीफ हुआ और ये लीफ हुआ, तो ये दोनों लीफ के बीच में क्या एंगल है, उसको एंगुलर डाइवर्जेंस बोलते हैं। इन शॉर्ट, दो एडजेसेंट लीफ, एक दो जो लीफ है आसपास में है, एक के बाद एक है, उनके बीच में क्या एंगल है, उसको एंगुलर डाइवर्जेंस बोलते हैं। सो वी कैलकुलेट एंगुलर डाइवर्जेंस एज द नंबर ऑफ सर्कल्स अपॉन नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज। तो ऑर्थोस्टिकीज फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो कि एक स्पाइरल में कितने लीव्स प्रेजेंट है। तो ये एक स्पाइरल है, ठीक है। Okay, let us understand this in the next example. This will only confuse you. This is actually very easy but becomes confusing when we go to learn like this. So I will explain this in the next slide. For now, just remember that angular divergence is equal to number of circles. कितने spiral circles हैं और नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज जो है वो कितने हैं, इसके बेसिस पे एंगुलर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा जो टर्म हमको समझना है वो है ऑर्थोस्टिकीज। सो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑर्थोस्टिकीज इज़ अ वर्टिकल रो ऑफ लीव्स अरेंज्ड इन वन अबाउट द अदर। सो एक के ऊपर एक जो लीव्स प्रेजेंट हैं उनको ऑर्थोस्टिकीज बोलते हैं। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एट डिफरेंट हाइट्स ऑन एक्सिस। तो ये एक एक्सिस है, उसमें लीव्स अलग अलग हाइट पे प्रेजेंट है। ये एक हाइट है, ये सेकेंड हाइट है, ये थर्ड हाइट है, ये फोर्थ हाइट है। तो अलग अलग हाइट पे लीव्स कैसे अरेंज्ड है उसको भी ऑर्थोस्टिकीज बोल सकते हैं। सो फॉर अस ऑर्थोस्टिकीज इज एक्चुअली द नंबर ऑफ लीव्स, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्पाइरल फाइलोटैक्सी। सो स्पाइरल फाइलोटैक्सी के कुछ टाइप्स हैं जो हमें समझने होंगे। सो फर्स्ट इज ऑल्टरनेट, second is 1/2 ranked or disticus, 1/3 ranked or tristicus, 2/5 ranked or pentasticus and 3/8 ranked or octasticus। इसके आगे भी बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं बट हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना है। वी आर ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू अंडरस्टैंड द बेसिक पैटर्न। सो ये जो है ये 5 टाइप्स ऑफ स्पाइरल फाइलोटैक्सी है। अभी ऑल्टरनेट जो है वो सब में कॉमन है, सब में ऑल्टरनेट तो होगा ही बट अरेंजमेंट जो है लीव्स का वो वेरी करता है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट व्हाट इज़ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। सो एज आई टोल्ड, स्पाइरल फाइलोटैक्सी जो है वो यूजुअली ऑल्टरनेट लीव पैटर्न में ही देखी जाती है। सो ऑपोजिट क्या होता था कि एक लीफ यहाँ पे तो एग्जैक्टली यहाँ पे दूसरा लीफ होता है, बट व्हाट इज़ ऑल्टरनेट, वन इज़ हियर सो वन इज़ हियर, now one is here and one is here, so there is no opposite leaf present. So this is called alternate phyllotaxy. This is also a spiral phyllotaxy. And आगे हम जो भी अरेंजमेंट देखेंगे वो सारे अरेंजमेंट भी alternate पैटर्न में ही होते हैं, right? So this is how alternate arrangement is there. Now let us understand, this is important, which is 1/2 ranked or disticus phyllotaxy. So this is mainly seen in the family Graminae. So what happens is that leaf on the second node is just opposite to the leaf on the first node. Let us understand this with this diagram. So this is your stem, right? And this orange line that you are seeing is the spiral that I have drawn actually. So this is one spiral, right? Second, third, like that. So
Now what is written? See, now what is happening, that this is your first leaf, this is your second leaf here. So leaf on the second node is just opposite the leaf on the first node. तो ये आपका फर्स्ट नोड है, यहाँ पे लीफ 1 है, राइट. तो लीफ 2 ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट है बट ऑल्टरनेट है, यानी कि एग्जैक्टली ऐसे ऑपोजिट नहीं बट ऑन द ऑपोजिट साइड. सो इस साइड का ऑपोजिट ये हुआ. सो लीफ 1 का ऑपोजिट साइड इज लीफ 2, बट दिस इज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सी, नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट. तो ये ऑपोजिट इन द टर्म्स ऑफ साइड, इस साइड का ऑपोजिट ये हुआ, तो पहला लीफ यहाँ इस साइड प्रेजेंट है तो दूसरा लीफ इस साइड प्रेजेंट होगा बट ऑल्टरनेट पैटर्न में, राइट. सो वन लीफ इज ऑन दिस साइड, सो वन लीफ वुड बी ऑन दिस साइड एंड दिस इज इन ऑल्टरनेट पैटर्न, right. So what is written, leaf on the second node is just opposite the leaf on the first node, the third is above the first. So first के ऊपर third present है, third leaf is present above the first, then the fourth above the second. now fourth leaf जो है वो second के ऊपर होगा, fifth जो है वो third के ऊपर होगा, right. and similarly sixth would be above fourth, seventh would be above fifth, seventh जो है वो fifth के ऊपर होगा, right. so in this the angular divergence is 180 degree which is straight angle. तो जो एंगल बनता है दो लीफ के बीच में वो 180 डिग्री का बनता है. कैसे बनता है वो हम देखते हैं. ऑल द लीव्स फॉल इन टू ऑपोजिट ऑर्थोस्टिकीज, मतलब सारे लीफ जो है वो दो ऑर्थोस्टिकीज में ही आ रहे हैं, एक वर्टिकल रो और दो वर्टिकल रो. सो लाइक दिस देयर आर टू ऑपोजिट ऑर्थोस्टिकीज. अब स्पाइरल कवर्स वन सर्कल. अब ये स्पाइरल हम कैसे काउंट करते हैं, वन सर्कल, यानी कि पहली लीफ, पहला जो लीफ है उसके ऊपर जो लीफ प्रेजेंट है हमें वहाँ तक का स्पाइरल काउंट करना है. तो ये तो एक ही स्पाइरल हुआ, राइट. फ्रॉम वन लीफ टू थर्ड लीफ हाउ मेनी स्पाइरल्स आर देयर, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो फ्रॉम वन लीफ if I move up to the third leaf there is only one spiral, so one spiral is there, so spiral covers one circle and total two leaves in reaching the third leaf. अब मुझे थर्ड लीफ तक पहुंचना है फर्स्ट से, तो मेरे को कितने लीफ काउंट करने पड़ रहे हैं, 1 and 2. 1 और 2 लीफ मिला के हम पहुंचते हैं थर्ड लीफ पे. सो एक स्पाइरल लगता है और 2 लीफ लगते हैं थर्ड लीफ तक पहुंचने में, राइट. सो इसलिए इसको 1/2 रैंक्ड बोलते हैं, मतलब 1 सर्कल एंड 2 लीव्स टू रीच द थर्ड लीफ विच इज़ अबाउ द फर्स्ट लीफ. तो फर्स्ट लीफ के ऊपर कौन सा लीफ प्रेजेंट है और वहाँ लीफ, उस लीफ तक पहुँचने में हमें कितने स्पाइरल्स लगते हैं और कितने लीव्स लगते हैं, बस यही कैलकुलेट करना है. सो एंगुलर डाइवर्जेंस का हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, नंबर ऑफ सर्कल्स अपॉन नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज. तो हमारे केस में नंबर ऑफ सर्कल्स क्या है, 1, नंबर ऑफ स्पाइरल इज 1 एंड नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज इज 2. मतलब कितने लीव्स लगते हैं, 1 and 2 टू रीच अप टू द थर्ड वन. तो इसलिए टोटल 2 लीव्स लगते हैं 3 तक पहुंचने के लिए और एक स्पाइरल लगता है, और इसलिए नंबर ऑफ सर्कल्स वुड बी 1 एंड लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज वुड बी 2. दिस इज ऑफ 360 डिग्री. क्यों 360 डिग्री, क्योंकि एक स्पाइरल का जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है. तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो क्या होगा, 1/2 इंटू 360. सो दैट वुड, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 144 डिग्री, राइट. ओके, this is actually a mistake. 1/2 of 360 means 1/2 into 360 मैं करूँगी तो 180 डिग्री आएगा. मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा, नॉट 144. सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज़ 180 डिग्री, राइट. सो 1/2 रैंक्ड और दिस टिकस लीव्स में, दिस टिकस फाइलोटैक्सी में जो एंगल होगा दो लीफ के बीच में वो 180 डिग्री होगा, और जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 1/2.
और इसीलिए इसको 1/2 फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, मतलब 1 सर्कल टू रीच द लीफ अबाउ 1 एंड 2 लीव्स इन द प्रोसेस। मतलब 3 तक पहुंचने के लिए हमको कितने लीव्स लगते हैं, तो 2 लीफ लगते हैं, और कितना सर्कल लगता है, तो 1 सर्कल लगता है, तो इसलिए इसको 1/2 फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं, राइट। एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टिकस फाइलोटैक्सी। सो आई होप दैट 1/2 फाइलोटैक्सी इज क्लियर विथ यू। अब आप एक बार 1/2 फाइलोटैक्सी समझ गए तो आगे की सब फाइलोटैक्सी आप इजीली समझ सकते हो, सेम पैटर्न फॉलो होता है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड 1/3 रैंक्ड और Tristicus phyllotaxy. So this is seen in common sedge Cyperus rotundus. So ये जो है हमको, ये भी ग्रास है, इसमें देखा जाता है विच इज Cyperus rotundus। तो यहाँ पे 3 ऑर्थोस्टिकीज प्रेजेंट है। अभी लेट अस टेक द एग्जाम्पल। ये जो है ये हमारा स्टेम है, ये जो है ये इमेजिनरी स्पाइरल है, ठीक है। और ये जो है बीच में ब्लू जो है वो लाइन है, जो ये बताता है कि स्टेम जो है वो एक्चुअली उसके 3 एंगल्स है, राइट। सो एक लाइन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। नॉट गोइंग डीप इनटू इट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट द 4th लीफ इज अबाउट द फर्स्ट लीफ। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट लीफ है, ठीक है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर 4th लीफ आ रहा है, ठीक है। 1/2 रैंक्ड में क्या हो रहा था, फर्स्ट लीफ के ऊपर सेकेंड लीफ आ रहा था, सॉरी फर्स्ट लीफ के ऊपर थर्ड लीफ आ रहा था। अभी 1/3 रैंक्ड में क्या हो रहा है, फर्स्ट लीफ के ऊपर 4th लीफ आ रहा है। अबाउट द फर्स्ट लीफ 4th लीफ इज प्रेजेंट, राइट। एंड सो व्हाट इज हैपनिंग, कितने स्पाइरल लग रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर कौन सा लीफ प्रेजेंट है, 4th लीफ प्रेजेंट है। तो 4th लीफ तक पहुँचने के लिए कितने स्पाइरल लगते हैं, तो 1 स्पाइरल लगता है। कितने लीफ लगते हैं, तो 1, 2 और 3 लीफ लगते हैं, राइट। सो इसलिए इसको हम 1/3 रैंक्ड बोलते हैं, मतलब 1 स्पाइरल, 1 सर्कल एंड 3 लीव्स, राइट। सो 4th लीफ इज अबाउ द फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ के ऊपर 4th लीफ है। 5th लीफ अबाउ सेकेंड, और 5th जो है वो सेकेंड के ऊपर है। उसी तरह 6th लीफ जो है वो थर्ड के ऊपर है, राइट, एंड सो ऑन। मतलब 7th जो है वो 4th के ऊपर है, 8th जो है वो 5th के ऊपर है, 9th जो है वो 6th के ऊपर है, एंड 10th। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये सब ऑल्टरनेट पैटर्न है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरा ऑल्टरनेट पैटर्न बनता है। सो ये जो है ये 1/3 रैंक्ड है। स्पाइरल कवर्स 1 सर्कल, स्पाइरल जो है वो 1 सर्कल लेता है 4 तक पहुँचने के लिए। एंड टोटल 3 लीव्स टू रीच द लीफ अबाउ फर्स्ट, फर्स्ट के ऊपर 4th है, 4th तक पहुंचने के लिए हमें टोटल 3 लीव्स लगते हैं या 3 ऑर्थोस्टिकीज लगते हैं। सो एंगुलर डाइवर्जेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स विच इज़ फॉर अस इन दिस केस इज़ 1 एंड नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिकीज इज़ 3, और लीव्स जो है वो 3 है, राइट, ऑफ 360 डिग्री, राइट। अगेन 360 डिग्री तो सब में आएगा क्योंकि स्पाइरल का जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का हम काउंट करते हैं। तो 1/3 इंटू 360, अब मैं ये करूँगी तो मुझे मिलेगा 120, राइट। सो 360/3 दैट इज़ 120। सो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लीफ और सेकेंड लीफ के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट लीफ एंड द सेकेंड लीफ इज़ 120 डिग्री। Similarly, second leaf and third leaf is 120 degree, and like this the angle between 2 consecutive leaves is exactly 120 degree. So this is 1/3 ranked or Tristicus. इसको 1/3 फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं based on the fraction. So number of circles 1 to reach the 4th leaf and number of leaves or orthostickies 3
मतलब 3 लीफ या 3 ऑर्थोस्टिकीज लगते हैं तो उसको हम 1/3 फाइलोटैक्सी बोलते हैं, राइट। आई होप कि 1/3 फाइलोटैक्सी आप लोगों को क्लियर है। So now we move towards the understanding of the next, which is 2/5 ranked or Pentasticus phyllotaxy. Now here example is China rose and banyan. China rose मतलब hibiscus और sorry, China rose is not hibiscus, it is a rose plant, rose like looking plant, and banyan tree. तो इसके leaves जो है वो 2/5 ranked होते हैं. So in this 6th leaf is above the first leaf and 7th leaf above the second and so on. So this is the stem. So first leaf यहाँ पे है, actually यहाँ पे है जहाँ पे 1 लिखा है, then second leaf यहाँ पे है, ठीक है, third leaf यहाँ पे है, fourth यहाँ पे है, fifth यहाँ पे है और 6th यहाँ पे है. So क्या हो रहा है, 1 के ऊपर कौन सा लीफ आ रहा है, 6th वाला, ठीक है. सो हियर 6th लीफ इज़ अबाउ द फर्स्ट. सो ये जो लीफ है एक्चुअली यहाँ पे है, इट इज़ मिसप्लेस्ड. सो फर्स्ट लीफ इज़ हियर जहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 के एग्जैक्टली ऊपर 6th लीफ है. तो अब हमें यहाँ तक का स्पाइरल काउंट करना है. तो 1 स्पाइरल, 2 स्पाइरल एंड 3 स्पाइरल, सॉरी 1 स्पाइरल एंड 2 स्पाइरल टू रीच द 6th लीफ, राइट. एंड टोटल हाउ मेनी लीफ, 1 2 3 4 and 5. So 5 leaves to reach the 6th one and 2 spirals to reach the 6th leaf. 2 spirals लगते हैं 6th leaf तक पहुंचने के लिए जो 1 के ऊपर है, और 5 लीफ लगते हैं, और इसलिए इसको 2/5 ranked और Pentasticus phyllotaxy भी बोलते हैं. So 6th leaf is above the first leaf. फर्स्ट लीफ के ऊपर 6 लीफ है तो ऑब्वियसली हमें 5 लीफ काउंट करने पड़ेंगे, और 7th leaf above the second and so on. So this is 7th. Then spiral covers 2 circles. So that is what I told कि spiral has 2 circles. 6 तक पहुंचने के लिए 2 सर्कल लगते हैं, and spiral includes 5 leaves to reach the 6th leaf above the first leaf. So first leaf के above 6th leaf है, उसमें 5 leaves लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए. सो एंगुलर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ सर्कल्स स्पाइरल्स हमारी केस में 2, नंबर ऑफ लीव्स और ऑर्थोस्टिक इज 5, ठीक है, ऑफ 360 डिग्री. सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 144 डिग्री, राइट. सो दिस इज़ द करेक्ट कैलकुलेशन फॉर 2/5 ranked और Pentasticus. अब इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड जो लीफ है दोनों के बीच का एंगल 144 डिग्री होगा, जो अपना एंगुलर डाइवर्जेंस है. उसी तरह सेकंड और थर्ड लीफ के बीच में भी 144 होगा, थर्ड और फोर्थ लीफ के बीच में भी 144 डिग्री होगा. सो लाइक दिस द एंगल बिटवीन एवरी लीफ in 2/5 ranked Pentasticus would be constant 144 degree, right. And that's why it is said that in spiral phyllotaxy the angle between 2 leaves will always be the same, right. So this is about 2/5 ranked और Pentasticus phyllotaxy. इसको इसीलिए 2/5 phyllotaxy भी बोलते हैं, based on the fraction 2 for the circles and 5 for the leaves to reach the leaf present above the first one, right. Now the next and the last is 3/8 phyllotaxy or Octasticus. Now I am not showing any diagram for this, but you can relate it, or you can try to draw the diagram by yourself, where the 9th leaf is found above the first leaf and the spiral covers 3 circles. Therefore the fraction 3/8 and total of 8 leaves in the spiral to reach the 9th leaf above first. तो फर्स्ट के ऊपर 9th लीफ होगा, तो 9th लीफ तक पहुंचने के लिए 3 सर्कल्स 3 स्पाइरल लगते हैं और टोटल 8 लीव्स लगते हैं, इसलिए इसको 3/8 phyllotaxy बोलते हैं. दिस कैन बी सीन इन कैरिका पपाया विच इज़ योर पपाया ट्री. पपाया प्लांट में जो है लीव्स का अरेंजमेंट 3/8 phyllotaxy है. तो एंगुलर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ सर्कल्स 3 and number of leaves or orthostickies would be 8 of 360 degree.
तो 3/8 इंटू 360 करेंगे तो 135 डिग्री बनेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि 3/8 फाइलोटैक्सी में दो लीव्स के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 135 डिग्री. Likewise, between first and second leaf, between second and third leaf, like this, the angle will remain constant, which is 135 degree. So this is about spiral phyllotaxy, and this that we learned. The last one is also called 3/8 phyllotaxy, based upon the fraction 3 for the circles and 8 for the leaves, right? So now something very interesting that we can note from all these maths is that when you add the numerator and denominator of preceding phyllotaxy, new phyllotaxy is obtained. जब दो फाइलोटैक्सी जो पहले की है उसको आप ऐड करोगे तो नई फाइलोटैक्सी ऑटोमेटिकली मिलेगी. फॉर एग्जांपल हमने 1/2 और 1/3 फाइलोटैक्सी पढ़ा, उसको मैं न्यूमरेटर यानी कि ऊपर का और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का प्लस करूँगी तो 1 + 1 2 और 2 + 3 5, तो मुझे नई फाइलोटैक्सी मिल गई विच इज़ 2/5 और पेंटास्टिकस फाइलोटैक्सी, राइट. अब मैं 1/3 और 2/5 को प्लस करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आई विल गेट 1 + 2 3 and 3 + 5 8. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफ़ आई add, I will get 3/8 phyllotaxy, which is Octasticus, or 3/8 phyllotaxy. Now if I calculate 2/5 and 3/8 phyllotaxy, I will get next phyllotaxy जो हमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि आगे ये सीरीज़ आगे जाती रहती है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी हो सकता है. तो 2/5 and 3/8 when I add, I get 5/13, which is new phyllotaxy. And this phyllotaxy we have not learned because like this the phyllotaxy, the leaf arrangement keeps on continuing in different plants. So in this way we can keep on getting new phyllotaxy. तो इस तरीके से प्रीवियस दो फाइलोटैक्सी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस करें तो हमें नई द नेक्स्ट थर्ड फाइलोटैक्सी मिल जाती है. अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने देखी, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़ और स्किम्पर ब्राउन सीरीज़ ऑफ डाइवर्जेंस. सो ये जो सीरीज़ बनता है पूरा, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़ और स्किम्पर ब्राउन सीरीज़ ऑफ डाइवर्जेंस. सो व्हेन द डाइवर्जेंस बिकम्स अ बिग फ्रैक्शन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट. तो अगर फ्रैक्शन इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाता है तो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो काउंट करना मुश्किल हो जाता है, राइट. तो जब काउंटिंग मुश्किल हो जाती है तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि लीफ जो है वो स्टेम पे क्राउडेड हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे लीव्स एक स्टेम पे प्रेजेंट है. सो व्हेन डाइवर्जेंस इज बिकमिंग अ बिग फ्रैक्शन, व्हेन द फ्रैक्शन कीप्स ऑन बिकमिंग बिग, राइट, so then it becomes impossible to count the number of leaves because leaves are become crowded on a short stem. So when such complex phyllotaxies are shown by some plants, they have very short internodes. So such plants have very short internodes, and because of which the leaves are crowded together, and such type of phyllotaxy is called parasticus. ऐसी फाइलोटैक्सी जो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें शॉर्ट इंटरनोड होता है एंड बहुत सारे लीव्स एक साथ क्राउड हो जाते हैं, बट स्पाइरल अरेंजमेंट है बट हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस टाइप की फाइलोटैक्सी को हम पैरास्टिकस फाइलोटैक्सी बोलते हैं. अब इसके एग्जाम्पल है लीफ बेसिस इन डेट पाम, मतलब कि डेट्स जो खजूर आप खाते हो उसमें लीफ बेसिस का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. देन स्पोरोफिल्स इन पाइन कोन, पाइन कोन में जो स्पोरोफिल्स है जो स्पोर्स को बैर करते हैं उसमें भी इस टाइप का अरेंजमेंट होता है. तो ये इस तरह का कोन आपने देखा होगा. दीज आर कॉनिफर ट्रीज कोन्स. सो कॉनिफर जो प्लांट होते हैं ठंडे एरिया में, वहाँ पे इस तरह का कोन होता है प्लांट में. और ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो ये स्पोरोफिल्स है, ये सब एक एक स्पोरोफिल है, और ये सारे स्पोरोफिल जो है ये स्पाइरल अरेंजमेंट में अरेंज है. तो आप ऊपर से देखो आपको एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट दिखेगा, राइट. सो ये जो है ये पैरास्टिकस है.
means it is a complex phyllotaxy and we cannot count it, right? So this is it about phyllotaxy of leaves. So like this, the series in spiral phyllotaxy can keep on increasing, and when it becomes complex, it becomes difficult to count. And this pine cone is an example of complex phyllotaxy in spiral phyllotaxy, right? So I hope that this lecture has become useful to you to understand the phyllotaxy of leaves. बट इन केस इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, कभी भी मुझे पूछ सकते हो. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर डाउट्स. या, so that is it. Thank you.